All right, viewers, of course, we've heard SE giving a unanimous verdict on Article 370. My colleague Ajay Jandial joins us on the broadcast. Ajay, over to you. All right, there seems to be some connectivity issue on my colleague Ajay's end, but of course, just to re-encapsulate what has been stated in the Supreme Court, the Chief Justice has said the Article 370 was a temporary provision. Interim arrangements due to war conditions were made in Jammu and Kashmir, and no internal sovereignty in Jammu and Kashmir constitution. Of course, there's a lot has been stated in this verdict. My reporter is going to be joining us very shortly to give us a quick recap of exactly what has been said, but of course, viewers, a unanimous verdict now on Article 370. It is a big day for the Union Territory of Jammu and Kashmir. So of course, viewers, there you had it. We just heard the verdict on Article 370. Our reporter is going to be joining us very shortly to give us more on this. Of course, the Supreme Court upholds a reorganization of Ladakh as a union territory. Supreme Court holds abrogation of Article 370 in Jammu Kashmir is constitutionally valid. Asks Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir by 30th September 2024. Our reporter is going to be joining us very shortly to encapsulate exactly what was said during this verdict. But of course, viewers, a unanimous verdict has now been given out with regards to Article 370. So, of course, viewers, a reporter is going to be joining us very shortly to give us a glimpse into or give us a quick recap of what's been stated. But of course, to give you an understanding on this unanimous verdict that has been declared, quickly telling you what was stated in this verdict. Jammu and Kashmir does not retain any element of sovereignty after instrument of accession was signed. No internal sovereignty for Jammu and Kashmir. This is what has been said during the verdict. It has challenged to the proclamation of presidential rule, which has now been stated as not being valid. Exercise of power of president must have a reasonable nexus with the object of presidential rule. Of course, viewers, a lot has been said. Article 370 was a temporary provision. That is a very big statement that's coming in from this verdict. Power of parliament to legislature for state cannot exclude law-making power. Meanwhile, my colleague Ajay Jandial joins us on the broadcast. Ajay, quickly give our viewers a recap of this verdict that's just been laid out. Well, the way basically Supreme Court have announced its decision that clearly indicates that the supreme power means supreme power. They clearly says that president's we cannot challenge the president's decision, and that's why they say that what we can see is that statehood should be restored here in the Jammu and Kashmir. They say that before 30 September 2024, election need to be conducted in the Jammu and Kashmir. And other thing is that 370 is not going to resume here in the Jammu and Kashmir, because the decision taken by the parliament is the final decision. That is what is being conveyed to the people, and that is what exactly has happened. And you could see that the people of the West Pakistani the refugee community, those who are basically in the dilemma for last many years because of the ongoing situation, because they were not having the citizen rights. And let's take a first reaction from the Labaram Gandhi, who is a person who was fighting for these people, lakhs of people, those who live all around the country. Labaram ji, पहला रिएक्शन क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो हुआ है वो सही है? बिल्कुल अच्छा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और
पूरे जितने भी डिप्राइव्ड फैमिली थी जम्मू कश्मीर में, सबके हक में ये फैसला आया है। जब ये धारा 370 और 35 ये ख़त्म हुई तब भी तो फैसला आया ही आया था, लेकिन आज जो इन्होंने कश्मीरी हुक्मरानों ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की थी, उसके विपरीत फैसला जो है वो हमारे हक में आया है। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका लग रहा था बीच में कोई डर था कि अब ये 370 पे अगर कहीं वापस कहते हैं कि ये गलत हुआ है तो आपके लोगों के साथ, आपके साथ क्या होगा? देखिए, ये हमें तो पता था और उन कश्मीरी हुक्मरानों को भी पता था कि ये वापस आने वाली नहीं है। जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है, भारत की पार्लियामेंट में इसको निरस्त किया गया है, तो फिर जब वापस कैसे आएगा? इसका मतलब है पार्लियामेंट जो है वो फेलियर गिनी जाती है सुप्रीम कोर्ट के आगे भी। तो ये फैसला जो था, ये सबको पता था, कश्मीरी हुक्मरानों को भी पता था कि धारा 370 और 35 निरस्त हो चुकी है, ये अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन उनकी अपनी मजबूरी थी, अपने लोगों की खातिर, जिन लोगों के बीच में उन्होंने कल वोट मांगने जाना है, उनकी खातिर उन्होंने लोगों ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की कि हम कल लोगों के बीच में जाएंगे। तो लोगों को इतना तो कह सकते हैं कि हमने अपनी तरफ से बहुत लंबी फाइट की, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। तो जिस तरीके से ये फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव 30 सितंबर से पहले कराइए। आप लोगों को वोट डालने का हक नहीं था जम्मू कश्मीर में, अब इस चीज़ की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और वोट डालने पहुंच पाएंगे, पहले तो हो नहीं पाता। देखिए, अभी हम वोट भी डालेंगे, हमारे पंच भी बनेंगे, हमारे सरपंच भी बनेंगे और हमारे विधायक भी बनेंगे। ये बहुत ही एक खुशी का वाक्य जो है हमारे लिए आया है। और ये देखिए, आप देखें तो ट्राई कलर्स दे स्टार्टेड अनफर्लिंग हियर in the because celebration has begun, and this is what exactly they were basically waiting for last several months, because after they came to know that they are going to the opposition parties, they are going to the Supreme Court, they were having apprehension that if Supreme Court will change this decision, that what could be their future in the coming time, and that's why they basically were scared. But today they are saying that this decision has been taken, and now the decision is in their favor, and they are saying that now they are hopeful that election is going to be held in the Jammu and Kashmir, because they are going to vote for the vote here in the Jammu and Kashmir assembly for the first time, because earlier they were not having that right. Let's speak to the Labagram Gandhi again. Labaram ji, जिस तरीके से अब जो कश्मीर के राजनेता हैं, क्या लगता है उनका फ्यूचर क्या है? क्या इस मुद्दे को लेकर कश्मीर जा पाएंगे? देखिए, उनकी अपनी सोच है, मानसिकता उनकी अपनी है। कश्मीर के लोगों में उन्होंने क्या उन लोगों को गुमराह करना है, क्या नहीं करना है, और मेरे ख्याल उन्होंने वोट लेना है, वोट के लिए दोबारा लोगों को गुमराह करेंगे कि हमने ये आस अभी छोड़ी नहीं है, हमने इलेक्शन से पहले धारा 370 और 35 को दोबारा वापस लाना है। ये उनकी अपनी सोच है, वो लोगों के बीच में जाएंगे, गुमराह करेंगे। Quickly come back to you. I'm being told that Ashwini Upadhyay is speaking right now. Let's cut across live. बेंच ने एक मत होकर फैसला दिया है, उनकी कोई ओपिनियन में डिफरेंस नहीं है। सबने ये कहा है कि बिल्कुल आर्टिकल 35A गलत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, गलत तरीके से आया। आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, ये सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपहेड कर दिया। जो केंद्र सरकार का फैसला था जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बारे में, उसके बारे में भी उन्होंने केंद्र सरकार के जो डिसीजन था उसको ही कंफर्म किया है। जम्मू का लद्दाख कंटिन्यू यूनियन टेरिटरी रहेगा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म। केंद्र सरकार की उस दलील को भी मान लिया जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमेशा ही यूटी नहीं रहेगा और इसे राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि आप अगले 10 महीने में 30 सितंबर 2024 तक वहां पे इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर लीजिए। तो ये स्वागत योग्य कदम है, अच्छा है, वहाँ डेमोक्रेसी फिर से बहाल हो जाए। बहुत बात बहुत सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दी कि जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल ठीक कहा है। पहली बात, उस मेरिट पे भी नहीं गए। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को लेके जो बहुत सारे सवाल थे, कुछ 8 सवालों का जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उन 8 सवालों से स्पष्ट हो गया कि जो हम लोगों की डिमांड थी, हम लोगों का कहना था, वो बिल्कुल सही था। जो लगातार 35A के बारे में, 370 के बारे में गुमराह किया जा रहा था, वो सारी दलीलें फेल हो गई। और अच्छी बात ये भी रही कि कपिल सिब्बल साहब जो लीड काउंसिल थे, उन्होंने जजमेंट का आधे 1 घंटे पहले ट्वीट करके बोल दिया था कि कुछ लड़ाइयाँ हारने के लिए लड़ी जाती हैं,
तो एक तरीके से उनको ऐसे लगता है, आभास हो गया था कि उनकी लड़ाई में कोई दम नहीं है। अदरवाइज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, सिब्बल साहब 10 बजे ट्वीट करके कह रहे हैं कि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। अगर यही ट्वीट कोई दूसरा कर देता तो मुझे लगता है सियासी बवाल हो गया होता कि इन्हें पहले जजमेंट पता चल गया। अगर यही बात हम लोग कह देते कि हम तो जीतेंगे और सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का फैसला हमारे पक्ष में आएगा, तो ये होती कि देखिए क्या कहानी है, इनको पहले कैसे पता चला। अब ये बात सिब्बल साहब से पूछा जाना चाहिए कि उनको पहले कैसे पता चल गया कि हाँ उनके खिलाफ फैसला जा रहा है। सिब्बल साहब देखिए बहुत वरिष्ठ वकील हैं, अनुभवी वकील हैं। अभी तो उन्होंने एक नई दलील भी दिया था सिटीजनशिप वाले में कि असम तो म्यांमार का पार्ट था। तो वो अनुभवी हैं, अपनी दलीलों को निकालते हैं, अपनी तरीके से अपना वो अपनी एबिलिटी यूज करते हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, बहुत वरिष्ठ वकील हैं, भूतपूर्व कानून मंत्री हैं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि उन्होंने रिजल्ट के पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं, कुछ लड़ाइयां। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हार के जीतने वाले को बाजी करके आपने अश्वनी उपाध्याय को सुना, पिटिशनर थे, साफ तौर पे फैसले से बहुत ज्यादा खुश हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.